सर एक मिनट में ढूंढ रही हूँ सिनेरियो। चलो, आप कहते हो तो मैं पढ़ के सुना दूं? सर मैं ढूंढ रही हूँ, बस ये मिल गया। ओके। You are a senior registrar conducting a pre-operative round of the patients on elective list tomorrow. You are asked to see a Mrs. Asma, 25 years old, nulli para patient who wishes to conceive and is on list for diagnostic laparoscopy, which you are to perform. You have 10 minutes in which you will have a structured discussion with the examiner regarding the management of this patient. चलो, तो shall we start? जी सर। चलो, जिसमें पहला पार्ट है, how will you review this patient in your pre-operative ward? सर pardon, repeat करेंगे तो how you will you? How will you review this patient Okay sir. in your pre-operative ward? Okay, sir. I will introduce myself to patient, take introduction. I will confirm the details, ask her consent, and then I will ask this patient does she know about the procedure for which she is going to, for which I'm going to take the consent, and then I will ask that has she changed her mind or still she is with the procedure. I will take detailed history from this patient regarding the complaint for which she has been admitted, as my patient is admitted for the case of subfertility, and then I will ask this patient that since how long she is married and since how long she is trying for conception, and has she used any type of contraception, or has she ever been pregnant before? Has she ever been pregnant before? And then I will ask this patient regarding the couple history I will take, and the male history and the female history, and up to now what investigation and treatment she has received. And then I will explain the procedure to this patient that laparoscopy, it is a keyhole procedure that involves a type of incision to be given to at the subumbilical region. And also I will explain her that in this procedure we will I will have to take some analysis regarding her menstrual cycle, and also I will do examine this patient, investigate this patient, and then I will make a treatment plan with her, and then I will also discuss with the procedure its complication. In this way I will set an agenda. And I will ask this question that either they are couple are living together, since how long they are living, what is the frequency of coitus, any difficulty in coitus, does she know about the ovulatory days, and okay, and does she know about her ovulatory days? Is it the first marriage of both couple? Have they screened for any infection? Have they fathered or mothered a child? And regarding the male history, what is the age, occupation, a medical comorbidity in the male partner? Any drug the male is using, any history of surgery, trauma, radiation, infection in the male and the female. Regarding her last menstrual period, the periods are regular. Regarding her cervical smears, that they are up to date. Does this patient have any history of weight gain, hirsutism, acne, headache, bleeding of vision, discharge from the breast, any abnormal vaginal discharge, hot flashes, any history of heat or cold intolerance, any history of use of drugs? And the patient any medical comorbidity she is having, any history of previous surgeries. Regarding the patient menstrual cycle, does this patient have any history of heavy, painful, irregular intermenstrual postcoital bleeding? And the patient family history, does this patient and her husband, brothers and sisters, they have the children, medical comorbidity, malignancy, or any history of DVT, patient history of smoking, BMI, blood group transfusion, and support at home. And then I will explain that laparoscopy, then I will explain the procedure regarding the type of anesthesia I'm going to give this patient, that involves a general anesthesia type of incision that will be given to this patient, and the procedure that this procedure will involve not only to check her tubal patency, but also I will take some photos, and if needed sample will be taken, and it will not only be diagnostic, maybe it will be a somewhat therapeutic procedure as well. And also I will ask this patient that we may find nothing while performing the procedure, and I will also with her permission I will examine this patient. I will take her BMI, vitals, look for distribution of hairs, and thyroid examination plus breast and abdominal examination plus local examination with her permission. And then I will review her file, that up to now what investigation has been done, including her full blood count, blood group, blood sugar, virology, missing urine, microscopy, biochemistry, culture sensitivity with date. Plus, I will see that either urine beta ECG has been done, plus husband given an LCS report, patient hormonal profile, and also ultrasound, patient hormonal profile, HSG, ultrasound examination has been done, and what is the date of these investigations. And after that, after this investigation has been done, I will, okay, after the investigation, I will ask the patient that pre-anesthesia fitness will be taken from this patient, and I will give the patient information leaflet, and then after, once the patient has reviewed, I will take the written informed consent from this patient. Okay. Okay. Once patient is under anesthesia, how will you proceed with the procedure?
Okay, sir, I will complete the WHO safety checklist. I will confirm the patient identity and ask the staff nurse that all the instruments are sterilized and they are ready to be used, and ask for anesthesia. Is there any anesthetist? Is there any concern regarding the anesthesia machine or patient intubation? And after this, I will also confirm that the patient has been provided antibiotic cover, and I will make appropriate positioning for the laparoscopy procedure, and check that patient has bladder is empty, and I will confirm my finding by performing the bimanual examination to assess for the size of the uterus, mobility, tenderness, adenosine pathology. And I will also insert the, after cleaning and wrapping, I will insert the sense speculum and hold the anterior lip of the cervix with tenoculum and insert the Robin's cannula. And after that, after cleaning wrapping, I will also insert, I will check that Veress needle, either it is in a working condition and it is the valve of it is open, spring action is okay, and then I will proceed the further procedure. Sir, procedure, should I explain the procedure? How will you proceed with the procedure? Procedure, okay. Okay, sir. After that, after making the appropriate positioning, I will insert the Veress needle at the base of the umbilicus. Position of patient at this insertion, it would be the dorsal lithopium position. Its direction will be 90 degrees to the skin, and then once it has, I will hear the two clicks, one at the rectus fascia, the other will be at the peritoneum. As soon as it enters into the peritoneal cavity, I will change its direction towards 45 degrees towards the sacral hollow, and then as the valve of the this Veress needle is open, I will attach the insufflator, and I will create the pneumoperitoneum of 20 to 25 mm of mercury, and then I will after the insertion of this Veress needle, I will remove it, and if needed, I will slightly increase the incision and will insert the trocar and cannula. And cannula will remain its position. I will remove the trocar and then I will enter the telescope. Telescope has it has got the two lens, eyepiece lens, and the light source is attached. And then after the insertion, I will examine the overall abdominal peritoneal cavity. That what about that? Is there any adherent bowel or any injury to the vessels? And then I will check for the uterine fundus, anterior surface, posterior surface, pouch of Douglas, uterovesicle, and look for any adhesions, endometriotic spores, any ovarian cyst, any other pathology overall in the peritoneal cavity. And after this, if as it is a only diagnostic procedure, if I found any thing else that need to be treated, then I will enter the ancillary reports or the secondary reports. Otherwise, there is no need. Okay. Sir, एक और बात, sir, if I found any lesion, I will take the photographs of by means of camera. I may make the video, and if there is any adhesions, I can do the division. If any endometriosis, I can go for excision. If there is any cyst, I can go for the cystectomy. Or as I told the patient, I may not find anything else, so that is also possible. And also, sir, one more thing, I will also check the tubal patency, as I will confirm the tubal patency by means of this laparoscopy. Okay. If the patient is at risk of visceral injury, how can you minimize it? Okay, sir, I will first of all make sure that patient, I am one of my senior obstetrician or senior surgeon is with me during performance of the surgery, and appropriate. I have a pneumoperitoneum is created during the working. It is almost during the working. It is 10 to 15 mm of mercury pressure. At a time, and all the because by means of creation of this pneumoperitoneum, the viscera आपकी बेल बज की टाइम हो गया for the station time. हाँ इतनी जल्दी बेटा पता नहीं घड़ी मुझे लगा 5 मिनट हुए होंगे अभी 5 मिनट हुए होंगे सर मैंने फुल स्पीड में बोला था आपने फुल स्पीड में बोला था और अभी हमारा अभी एक ही वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन रहता था फिर क्या चीज आपने ठीक नहीं की सर आई थिंक सो कि इंफॉर्मेशन देनी भी जरूरी थी सारी और ज्यादा दी उसको ज्यादा शुरू में थोड़ा सा वो खराब हो गया था दोबारा से जब फिर हम अपनी लाइन पर आए थे एक पेशेंट को मैंने सेट एजेंडा करते वक्त ज्यादा बता दिया था उसकी हिस्ट्री में पॉइंट्स आने थे उसकी हिस्ट्री में पॉइंट्स आने थे बेटा देखो नंबर 1 ये वाला जो पेशेंट है ये आप कहाँ मिल रहे हो उससे सर प्री ऑपरेटिव वार्ड लिस्ट में लेकिन मेरी उससे फर्स्ट मीटिंग है आपकी उसकी फर्स्ट मीटिंग है लेकिन आपसे पहले भी तो उसने वहां तक किसी ने पहुंचाई होगा ना डिसीजन लिए होगी जी सर
तो फिर उसमें फिर इजीएस्ट वे आउट विद दिस द काइंड ऑफ कि जी मैं उसके सारे उसके नोट्स रिव्यू करूंगी जो उसके सही पास सर। है एक, और नोट्स में जो स्पेसिफिकली जो चीजें हैं वो मैं देखूंगी कि जी कि शी इज मैरिड फॉर कब से है, उसकी साइकिल रेगुलर है, एलएमपी कब से है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अगले दिन सर्जरी होने के। ठीक है यू सर। अंडरस्टैंड, ये दिस इज नॉट अ स्टेशन जिसपे, अगर ये आपका स्टेशन होता ना जिसपे वो कहते हैं कि जी एक ओपीडी पेशेंट आई है जिसको इनफर्टिलिटी है ये 5 years की, और अब आप इसको असेस कर लो। फिर जो आपकी सारी बातें थी वो सारी ठीक थी। इसमें आपने जो एवेल्युएशन बेसिकली करनी है वो पेशेंट की नोट्स रिव्यू करोगे आप। जी सर। उसके बाद आपने उसकी आइडेंटिटी आपने जाहिर है वो देखनी है, कंफर्म करना है। और उसकी जब इनफर्टिलिटी के साथ आप देख लेते हो कब से है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं आपने उसको ज़रा देखना। प्री ऑपरेटिवली जो इन्वेस्टिगेशंस आपको ज़्यादा ज़रूरत है, और एक इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, लेट्स से कि उसके हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सेमिनालिसिस ज़रूरी है, जी उसकी सर। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग ज़रूरी है, उसका जी। अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। वो सारा कुछ हुआ हुआ है उसको आप रिव्यू करोगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे करते करते आपने उसे इसकी एनेस्थीसिया की फिटनेस जो है वो कंपोनेंट भी आ जाएगा। बगैर एनेस्थीसिया की कंसल्ट के तो नहीं लेके जा सकते ना आप उसे अंदर नहीं सर, थिएटर। ये एनेस्थीसिया फिटनेस वो हमने करवाई थी, वो एनेस्थीसिया वाले इसको रिव्यू करेंगे। और चलो। जब तक पेशेंट को इन्फॉर्मेशन मैंने भी दी है, वो पीआईएल को भी रिव्यू करेगी, फिर कंसेंट लूंगी अच्छा उसका। अच्छा अच्छा। दूसरा साथ उसका, फिर उसके बाद उसको सारा आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि डे प्रोसीजर ये है। अब यू आर डूइंग अ थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक, ये पहले आपने डिसाइड करना है, लेकिन दिस पेशेंट वाज फॉर डायग्नोस्टिक ओनली फॉर मल्टीपल रीजंस। इसको सिनारियो जो हमने बनाया था इसको ऑपरेटिव का नहीं बनाया था, इसको सिर्फ थेराप्यूटिक का बनाया था, क्योंकि थेराप्यूटिक की जो है फिर जो सारी तैयारी है वो डिफरेंट होती है, और डायग्नोस्टिक की तैयारी डिफरेंट होती है। अगर सर आप इन कहो कि केस जी, सर इन केस डायग्नोस्टिक में हमें कुछ मिल जाता है तो हम उसे प्री ऑपरेटिव ये कंसेंट लें। फिर आप डिस्कस करोगे पेशेंट के साथ कि जी क्या हमने अपना, अगर कुछ हमें मिलता है तो हम उसी टाइम प्रोसीड करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको इन्फॉर्म करके हम बाद में करेंगे। दिस इज सही टू है सर। मेथड, इट्स योर चॉइस करोगे, लेकिन नॉर्मली जो हम यहाँ पे करते हैं वो हम 2 स्टेप में करते हैं। पर इफ यू वांट टू, जाके हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि जी वो है। फिर जो अगर आपने थेराप्यूटिक करना है, फिर थेराप्यूटिक के लिए पूरी ट्रॉली वो सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन, वो जब जाओगे थिएटर में फिर वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। यू गेट माई जी पॉइंट। सर। अगर हमें सिर्फ डायग्नोस्टिक करनी है तो फिर हम सिर्फ डायग्नोस्टिक पे आ जाएंगे। यही बात आपने पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करनी है। फिर दूसरा उसका इंसिजन कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, कितना बड़ा होगा, और अगर डायग्नोस्टिक होती है तो कब तक वो डिस्चार्ज हो जाएगी, और पोस्ट ऑपरेटिवली उसको क्या करेंगे, और इस तरह से सो ऑन। नंबर 1। और तीसरा एनपी उसने कब से होना है, क्या करना है, और इन्वेस्टिगेशन में आपने साथ उसकी वायरल मार्कर्स के साथ मैक्सिमम जो आपने साथ करा हो आपने हीमोग्लोबिन करा लेनी है, अगर कोई और इसका इशू नहीं। सही है सर। ठीक। दूसरा स्टेप इसके में फिर आपका जो क्वेश्चन था वो था इसकी अपना थिएटर में, थिएटर में लेके जाने से पहले अगेन चेकलिस्ट सारी उसकी जो आपने कहा WHO की, वो हम दोबारा उसे चेक करेंगे। उसे करने के बाद जब पेशेंट को लेके आ जाओगे उसके बाद इक्विपमेंट सारा, ट्रॉली सारी चेक होगी, स्टाफ मेक श्योर सारा होगा, और उसके बाद देन वी विल प्रोसीड कीजिए आफ्टर एनेस्थीसिया व्हिच वुड बी जनरल एनेस्थीसिया। जनरल के बाद फिर हम उसकी पोजीशन बनाएंगे, क्लीन करेंगे, ड्रेप करेंगे, ब्लैडर एम्प्टी करेंगे, और ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद फिर हमने वो वेरिसेस नीडल आपने जिस तरह कहा हमने वो इंसर्ट करनी है। अगर उसकी पहले सर्जरीज हैं तो उसका पॉइंट चेंज हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर हम अम्बलाइकस के इंट्राअम्बलाइकल जाके एंड आगे जाके पहले वेरिसेस चली गई, फिर आपका ट्रोकार चला गया, फिर उसके बाद उसका टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के बाद इंसफलेशन, इंसफलेशन के बाद आपने फिर अंदर क्या क्या रिव्यू करना है, जिसमें आप वो डाई भूल गए थे लेकिन आपने एंड में आके डाई डाल दी। वेरिसेस डालने के से पहले ईयूए आपने किया, वो होगा, और ईयूए के बाद जब वेरिसेस डाल जाएगी उसके बाद आप इसको यूट्रस को होल्ड करोगे, और उसको फिर इसमें एलिवेटर या आप वो रूबिन्स कैनुला डालोगे, क्योंकि अगर आप पहले डाल दोगे तो यूट्रस एलिवेट हो जाएगा, तो जब आपने नीडल डाली है या ट्रोकार डाली है तो उससे यूट्रस इंजर हो जाता है।
वो होने के बाद फिर इसमें अगला सवाल जो था वो था कि जी अगर उसकी है, सॉरी मैं दोबारा पढ़ दूं, इफ पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट विसरल इंजरी, हाउ यू मिनिमाइज दैट। वो ये है कि अगर उसकी प्रीवियस सर्जरी हुई है कोई इनिशियली, या उसके अब्डोमिनल कोई ऐसा है, तो फिर देन यू डिसाइड कीजिए कि हमने इसका जो इंसिजन जो है वो कहाँ पे देना है। Sir, Palmer's point या has open Hessian technique. वो इट विल डिपेंड अपॉन कि हेसन टेक्निक के ये हर जगह लिटरेचर में लिखा हुआ है कि चाहे ओपन टेक्निक हेसन्स हो, चाहे वेरिसिस नीडल हो, चाहे डायरेक्ट हो, इसमें से किसी में भी कॉम्प्लिकेशन रेट फर्क नहीं है। तो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि आपकी एक्सपर्टीज कैसी है। पर द पॉइंट ऑफ अपना ये इंसर्शन ऑफ द नीडल या आपने जहाँ से भी एंट्री करनी है वो हम चेंज करके टुवर्ड्स द पामर पॉइंट ले आएंगे, अनलेस कैंटल उसकी स्प्लीनोमेगाली है या स्प्लीनोमेगाली है या उसकी स्प्लीन की Is वहां पे surgery. कोई सर्जरी हुई है। अगर वो होगी तो देन अकॉर्डिंग टू दैट फिर उसको हम दोबारा मॉडिफाई हम कर लेंगे। ठीक, Fine. So making sure stomach is empty. स्टमक इज एम्प्टी और अगर जरूरत पड़ेगी, और दूसरा स्टमक के साथ साथ कि जब उसने इंट्यूबेट किया है तो यू लास्ट एनेस्थेटिस कीजिए, आपकी कोई ट्यूब इसकी ट्रेकिया में तो नहीं, ट्रेकिया की बजाय इसोफेगस में तो नहीं चली गई, क्योंकि अगर वो ठीक वहां सेपरेट कर दें या एयर भर दें तो फिर वो स्टमक जो है वो डिस्टेंड हो जाता। ठीक, उसके बाद सही। पोस्ट ऑपरेटिव जो आपका क्वेश्चन हमने पहुंचे नहीं वहां पे, आखिरी सवाल था जो आप जवाब दे दो बेशक अभी। व्हाट विल बी योर अप्रोच टू द पेशेंट आफ्टर द प्रोसीजर। सर वो अभी बता प्रोसीजर दें। हमने पूरी बात नहीं की जिसके अंदर वो एंड में आपने उसकी पूरी गैस को डिफ्लेट करना है और जो इंसिजन लाइन है उसको आपने स्टिच करना है विद सूचर, और उसके बाद पेशेंट को फिर दोबारा स्ट्रेट करके फिर हम उसको केयरफुली शिफ्ट कर देंगे इनटू पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड आफ्टर शी इज बीन एक्सट्यूबेटेड from anesthesia. सर क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली वंस आई हैव completed the procedure I will deflate the abdomen, remove the primary trocar. If the midline incision is more than 10 mm, I will apply the stitches. I will document and then I will debrief the patient, and if any sample is taken, I will give the sample to the attendants for the histopathology report. Once the patient become conscious, I will debrief the patient. I will also show the pictures which I have taken, and then I will explain her regarding the further management plan and the follow-up visits. And also I will explain her regarding the that she has been, I will make sure she has been provided rubella vaccination and folic acid she is taking. And if anything treatable is found, then I will also or if it is untreatable, I will refer her to the subfertility clinics. Like Okay. और अगर कोई ट्यूबर प्रेगनेंसी हो रहा होगी वो भी उसको बता देंगे। Okay. So पहला वर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन कि आपने सारा जो भी इसे रिकॉर्ड किया। दूसरा, अगर आपने कहा कि जी कोई सैंपल में लिया तो वो अटेंडेंट को दे देंगे। तीसरा, यूल वेट के पेशेंट को जो जब तक कॉन्शियस हो जाएगी और उससे पहले तक उसकी पेन रिलीफ और फ्लूइड का जो रिक्वायरमेंट है वो हम कंप्लीट करेंगे। वो करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन के फाइंडिंग्स क्या हैं, अगर उसकी ट्यूब्स पेटेंट हैं और अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है, सेमेन एनालिसिस जाहिर है उसका नॉर्मल है, तो फिर देन वी विल प्रोसीड विद द अगला जो उसकी है ट्रीटमेंट प्लान, विच कुड बी ओवुलेशन इंडक्शन अगर उसने पहले नहीं ली हुई, अगर ली हुई है तो फिर मे बी मूविंग ऑन टू आईयूआई। अगर उसकी कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें एडिशंस हैं या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या कोई मे बी अदर निकल आता है पैथोलॉजी अकॉर्डिंग टू दैट, अगर उसको रीसर्जरी की जरूरत है तो फिर आप उसको दोबारा वो बताओ। तीसरा, अगर उसकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड आ जाती हैं और उनका अंदर से कोई पीआईडी या ऐसी कोई रीजन निकल आती है, फिर उसको फर्टिलिटी क्लिनिक के लिए हिसाब से आईवीएफ के लिए आप रेफर कर दोगे। और करने के बाद और पेशेंट को बाय इवनिंग आप यू विल सेंड देम होम, जब उसने पानी या चाय या वॉमिटिंग नहीं होती वो करके एनपी उसको ऑफ हो गया और वॉमिटिंग नहीं होती तो शी कैन गो, और फिर आप उसको दोबारा अपने ओपीडी के अंदर क्लिनिक में दोबारा बुलाओगे आफ्टर अबाउट अ वीक और 10 days, और उसमें फिर ये सारी बातें उसकी इंफॉर्मेशन डिस्कस करके फर्टिलिटी प्लान्स अपने उसके हस्बैंड के साथ फिर डिस्कस होंगे और फिर देन और जब जाहिर है सर ये रिपोर्ट पामर पॉइंट जो है ये डायरेक्ट टेक्निक में आता है, ये जो पामर पॉइंट होती है ना बेटा, विसरल पावर इंजरी। पॉइंट इज अ पॉइंट जहाँ पे आपने इंसर्शन करनी है, चाहे वो डायरेक्ट टेक्निक से डाल लो, चाहे आप वेरिसिस नीडल से डाल लो, चाहे आप उसको हेसन से डाल लो, इट्स योर चॉइस।
उसमें सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है यहाँ पे डालने का, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस्टल मार्जिन बिल्कुल करीब होता है। जब कॉस्टल मार्जिन बिल्कुल करीब होता है, दैट मीन्स कि आपकी जो abdominal viscera है वो उसके abdominal wall के साथ नॉर्मली नहीं चिपकते। जब वो नहीं चिपकते तो दिस इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे आपकी मिनिमम काइंड ऑफ adhesions फॉर्मेशन के चांसेस Adhesions. मिनिमाइज तो सर, मिनिमम। तो ये ओपन टेक्निक जो है ये फिर हेसन टेक्निक है। अगर पामर पॉइंट तीनों टेक्निक के जरिए हम मतलब एक पॉइंट है जो कि हेसन ओपन से भी टेक्निक इज करा एन जाए। ओपन टेक्निक। हेसन यस सर। टेक्निक इज अ टेक्निक जिसमें तो ओपन टेक्निक करके जी आप 2 जी सर। सेंटीमीटर का NCN देते हैं, यू लिफ्ट जी अप द ये क्या कहते हैं abdominal वॉल बाय पुटिंग इन आइदर, वो तो कई बार लगा देते हैं, टावर क्लिप्स भी लगा सकते हैं, वरना आप ये एलिसिस भी लगा के एंड आप अंडर विजन NCN देते हो अप टू द रेक्टस शीट को भी ओपन करके, एंड देन यू पुट इन वेसल नीडल इंसफलेट, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे आप ट्रोकार डाल देते हो। तो सर, अगर ये पामर जैसे पामर पॉइंट इन तीनों के जरिए के थ्रू कर सकते हैं और हेसन ओपन के जरिए कर सकते हैं, तो सर स्प्लेनेक्टमी में फिर हम कहते हैं कि अगर स्प्लेनेक्टमी की इंसिजन है फिर वहां पे हम पामर पॉइंट नहीं करते, वहां पे फिर हम हेसन नहीं करते हैं ना? नहीं बेटा, हेसन इज अ टेक्निक, पामर इज अ पॉइंट, दोनों फर्क नहीं चीजें। तो वो जो स्प्लेनेक्टमी वाली सर बात है कि वहां पे तो फिर ये नहीं करते, वहां पे भी फिर सर हेसन नहीं करते हैं सर? नहीं, फिर आप उस पॉइंट पे जाओगे ही नहीं। अगर उसकी वहां पे स्प्लीनेक्टमी हुई फिर आप कोई और पॉइंट ढूंढोगे, विच कुड बी अपना ये क्या कहते हैं अम्बलाइकस और ज़ीफी के दरमियान में एक पॉइंट होता है, यू कैन गो देयर, और अगर आपने जाना है अम्बलाइकस के थ्रू भी जा सकते हो। ये 2-3 पॉइंट्स पे देन यू असेस कि आपके चांसेस ऑफ इंसिडेंट अपना सॉरी ये एडिशंस बनने के लिए कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज्यादा है। लेकिन ठीक है जो भी सर। आपने इवन फेनेसिन लगा दिया हो तो एम्ब्लाइकस के नीचे नॉर्मली वहाँ पे एडिशंस बन जाती हैं। So ओके सर, that is not थैंक the favorite point to go in. यू। ओके सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बेटा। मेरे कुछ क्वेश्चन है सर। ये जो हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन से डे पे करते हैं? यूजुअली ऑन जिस तरह आप HSC करते हो 8-9 डेज फॉरेन पीरियड्स खत्म होने के बाद, एंड उसकी वन ऑफ द रीजंस ये हैं कि जो हमने वैसे इसमें डिस्कस भी नहीं किया कि हिस्टोस्कोप के साथ लेप्रोस्कोपी के साथ हिस्टोस्कोपी भी करते हैं पेशेंट्स की, और हिस्टोस्कोपी का टाइम जो होता है बेस्ट होता है राइट आफ्टर द पीरियड्स। एंड उसकी रीजन ये होती है कि नंबर 1 एक तो आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो थिनेस्ट मोस्ट होती है, कोई पैथोलॉजी हो तो वो इजीली नजर आ जाती है, और उस टाइम चांसेस फॉर हर टू बी प्रेग्नेंट आर मिनिमम अगर उसकी पीरियड्स रेगुलर है। सर आपने हिस्टेरो बताया, हिस्टेरो भी करते हैं? हिस्टेरो सर हिस्टेरोपी, बताया। अच्छा अच्छा। लेप्रोस्कोपी के साथ एक्सक्यूज अगर मी आपने सर। करनी है तो इनफर्टिलिटी फॉर इनफर्टिलिटी के लिए करते हुए सब फर्टिलिटी के लिए फिर हिस्टोस्कोपी भी साथ होगी और लेप्रोस्कोपी भी साथ होगी। सर जो PID होता है उसमें हम HSG नहीं करते क्योंकि उसमें हम डाई डालते हैं ना, तो जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें भी तो हम डाई यूज करते हैं। लाइक हम PID की वजह से HSG में हम डाई को मतलब इतना हम कहते हैं हम लेप्रोस्कोपी पे डायरेक्टली जाएंगे क्योंकि 3% उसका रेट है कि उसे नहीं एग्रीवेट करता है, तो लेप्रोस्कोपी में भी तो हम डाई यूज कर रहे हैं। बेटा, अगर आपकी सस्पिशन है उसको कि उसकी कोई एडिशंस होंगी या PID होगी, फिर आप उसकी ऑपरेटिव इसलिए करते हो, सॉरी डायग्नोसिस इसलिए करते हो कि फिर उसको काउंसिल करके उसी सेटिंग में साथ उसका ये अगर उसकी एडिशंस वगैरह हैं तो उनको ब्रेक किया जा सकता है। और और नंबर सर 2, इसमें अगर फॉर एग्जांपल ट्यूब अगर ब्लॉक्ड होगी तो उस पे हम कौन सी सर्जरीज कर सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन के उसकी ट्यूब्स की कंडीशन क्या है। अगर तो वो बाहर से किसी एडिशंस की वजह से ब्लॉक्ड है तो एडिशोलाइसिस की सकती है, अगर कोई सिस्ट वगैरह उससे पुश कर रही है सिस्टेक्टमी की जा सकती है। अगर ट्यूब्स बिल्कुल नॉर्मल है फिर भी डाई नहीं आ रही, फिर जिस तरह आप कैनलाइज करते हो उसमें आप उसकी कैनलाइजेशन कर सकते हो। वो हिस्टोस्कोपी प्लस लेप्रोस्कोपी दोनों मिलके होता है, क्योंकि वो कैनला जो पास करते हो इट इज मोर लाइक DJ स्टंट की तरह का होता है, जो आप हिस्टोस्कोप के थ्रू हिस्टोस्कोपी की ऑस्टिया देखा उसके थ्रू वायर जो है गाइड वायर टाइप होती है उससे पास किया, और अगर कोई ब्लॉकेज छोटी मोटी हो तो उसके साथ वो क्लियर हो जाती सर है। अगर These are ये not लास्ट the लास्ट हाइड्रोसेल्पिंग ईयर ideal. होती है। हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सर, हाइड्रोसेल्पिंग्स तो उसके लिए फिर सर क्या सर्जरी करेंगे? हाइड्रोसेल्पिंग्स के लिए अगर है तो वो तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि आपने उसके लिए सेल्फ इंजेक्टमी करनी है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट। और अगर वो नहीं पेशेंट मानता है किसी और वजह से, नेक्स्ट ऑप्शन इज आप उसकी विच इज नॉट वेरी इफेक्टिव लेकिन स्टिल फिर आप उसकी सेल्फ एंजियोस्टमी कर देते हो कि उसे ओपन करके ड्रेन करके
उसे मास्टरप्लाइज कर देते हो ताकि वो दोबारा ना बने। लेकिन ऐसे नॉर्मली पेशेंट्स में जिनमें हाइड्रोसेल्पिंग्स हो, उनने नॉर्मली सेल्फिंजेक्टमी करके उनको आईवीएफ के लिए रेफर कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा कि व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन यू फेस ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी? मतलब ये जो अभी हम कर रहे हैं इसमें हमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? बेटा वो तो आप किताब खोलो, 101 लिखी मैं हुई, बता दूं? बता दो जरूर। Okay, sir, there is a risk of injury to the bowel, bladder, vessel at the and its percentage is 0.6 per 1,000, सारा 0.3 एक सेकंड। कोई भी प्रोसीजर अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस का पूछा जाता है और उसकी अंडर एनेस्थीसिया होना है, तो आपने स्टार्ट करना है कि जी एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन, वो भी तो उसी के साथ है ना। जी फिर सर, आप बिल्कुल। स्पेसिफिकली अपने पे आ जाओ। जी सर, there is a एनी risk of पेशेंट जिसकी आपकी सर्जरी में आपसे पूछा जाए कॉम्प्लिकेशन, यू स्टार्ट विद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनेस्थीसिया, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स अनलेस कैंटिल आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा कि एनेस्थीसिया की कौन कौन सी हो सकती है, एस्पिरेशन है, ये है, फला 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 जो भी है वो लगता है, वरना यू स्टार्ट विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड देन वी प्रोसीड। हाँ, फिर अब आगे क्या है? Okay, sir, there is a risk of complication of anesthesia, plus there is a risk of bowel, bladder, vessel injuries, and the major injury risk is 2 per 1,000, and the risk of hernia 1 in 100, risk of death is 3 to 8 per 100,000. And if they ask एक about regarding मिनट देखो बेटा, थोड़ा सा हौसला। नंबर 1, अगर आप इंजरी की बात कर रहे हो तो जो आपने कहा बाउल और किस किस की कहा, bowel, bladder, vessels. ब्लैडर एंड वेसल्स, ये किस टाइम पे होती Hello? हैं बेटा? ये तीनों चीजों की इंजरी किस टाइम पे होती है? Hello? आपको आवाज During आ रही है? insertion of varus needle. ड्यूरिंग, तो फिर आप स्टार्ट इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इसको आप कैटेगराइज कर दोगे। एक हमने कहा कि जी एनेस्थीसिया की हैं, दूसरी आप इसे कहोगे कि जी एट द टाइम ऑफ द इंसर्शन ये हो सकती हैं, तीसरी आप कहोगे जी जब मैनिपुलेट करते हो नीचे यूट्रस की उसकी हो सकती हैं, चौथी आप इसमें कहोगे कि जी ड्यूरिंग अगर हम उसकी कोई सर्जरी कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स, तो फिर उसकी हो सकती हैं, और फिर पांचवी आप इसे कहोगे जी पोस्ट ऑपरेटिवली और क्या क्या हो सकता है। इसके डिवीजन आप जब किसी भी चीज की डिवीजन कर लोगे, जैसे आपसे अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक की कॉम्प्लिकेशन पूछता है तो आप पहले मदर की बताते हो, फीटस की बताते हो, प्लेसेंटा की बताते हो। इसी तरह इसकी भी अगर आप ये डिवीजन कर लोगे तो फिर चांसेस कि आप कोई चीज मिस करोगे मिनिमाइज हो जाते हैं, नॉट रैंडमली। सो वी गोना स्टार्ट अगेन। फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? आवाज नहीं आ रही कि कोई बोल नहीं रहा? सर, अभी दोबारा रिकनेक्ट किया मैंने। आपने दोबारा रिकनेक्ट किया? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने इस जो पूछा था, मैंने पूछा था आपसे कि बाउल, ब्लैडर और वेसल्स की इंजरी कब होती, एट व्हाट टाइम? Sir, the injury takes place when there is a previous surgeries, the patient is known case of grade 4 or grade 3 endometriosis, or the patient is known case of IBS, Crohn's or ulcerative colitis, or when the सारा surgeon. किस टाइम पे होती है? आप वो तो आप मुझे रीजंस बता रहे हो, ड्यूरिंग प्रोसीजर ये किस टाइम पे होती हैं सारी चीज? सर, ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर से दौरान होती हैं और पेल्विक सर्जरीज में। ऑपरेटिव से पहले वाले स्टेप में हम कहाँ चले हैं? डॉक्टर, जब हम इंटर हो रहे होते हैं बाय द ट्रोकार और वेरिस नीडल। ड्यूरिंग इंसर्शन, सो यू जी विल सर। स्टार्ट द कॉम्प्लिकेशंस पहले एनेस्थीसिया की, एनेस्थीसिया के बाद फिर सेकंड स्टेप को होगा ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ द आइदर वेरिस नीडल और ट्रोकार। उसमें फिर क्या होंगी? ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ड्यूरिंग यूट्रस की एलिवेशन के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या मैनिपुलेशन के दौरान, और लास्ट में पोस्ट ऑपरेटिवली फिर कब क्या हो सकती है। सर, इसकी पोस्ट डिवीजन इनको ऑपरेटिव। 3-4 जी जी सर, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, अपीलेट कॉम्प्लिकेशन, अमंग द इमीडिएट वो फिर इसके बाद में चली जाएगी। जी सर, among the immediate complication, patient may complain of pain, shoulder tip pain, infection, and bruises. And among late complication, it includes hernia and surgical emphysema. And if the patient is not mobile or patient is of high BMI, she may also develop DVT. शाबाश। और आपका वुंड की इन्फेक्शन, जी सर, वो infection. हीमाटोमा, जी सर। ये सारी चीजें उसमें आपके आ जाएंगी।
ठीक, पोर्ट साइट हर्निया। पोर्ट साइड हर्निया लेट में आ जाएगा, बिल्कुल। पोर्ट साइड हीमाटोमा भी है और हर्नियाज भी है, बिल्कुल वो वाली hernia, है। hematoma यूट्राइन और मैनिपुलेशन की क्या होगी? यूट्राइन परफोरेशन सर, यूट्राइन जी बेटा, मैनिपुलेशन सर, हाँ यूट्राइन मैनिपुलेशन के मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के अंदर आप जब जाते हो तो आपका वो जो मैनिपुलेटर है उससे फॉल्स ट्रैक भी बन सकता है और परफोरेशन भी हो सकता है, सर्वाइकल ट्रॉमा भी हो। सर्वाइकल ट्रॉमा भी हो सकता है। जो भी आप जान ली उसको मैनिपुलेट करके आप कर सकते हो, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। Sir, along with complication, one more complication is that this patient laparoscopy may be converted into laparotomy in case of Yes. such complications. ये कि इट माइट बी प्रोसीड, और ये वाली बात सॉरी हमें प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को बताने की भी जरूरत है, जो हम भूल गए। This procedure complication recovery Yes. and उसका discharge plan discuss करना चाहिए था. यस, तो हम बीच में हमें मिस हो गई, तो ये भी चीजें उसमें आनी चाहिए। सर याद थे उस वक्त बताते बताते भूल कोई गए. बात, ये बताते बताते इसलिए होते हैं, जब आप उसको सेगमेंट्स में डाल दोगे ना तो फिर आसानी हो जाएगी। आप लोगों का अभी तक सबसे बड़ा मसला यही है कि आप अभी तक जो एक चीज नहीं समझ सके, वो ये नहीं समझ सके, ये जो लिमिटेड टाइम पे है इसमें आपने पूरा वो 30 मिनट वाली कहानी नहीं सुनानी। आपने फोकस रह के इसी चीज के ऊपर फोकस करना है और इमेजिन करना है कि बाकी वाली चीजें इसमें कोई और एडेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो नहीं है, ताकि आप इसी को कंप्लीट करो। जी वरना सर. तो इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री ही टेक्स अबाउट हाफ एन आवर टू टेक, और वो हिस्ट्री जब भी आपने इधर लेनी है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, अगर सिनारियो ओपीडी के अंदर है वो फर्क है, प्री ऑप में फर्क है, वार्ड में फर्क है, थिएटर में फर्क है। अब फिर आपने उसके फोकस कर, क्योंकि वो पेशेंट स्क्रीन होके आ रहा है सारा। एक्सक्यूज मी सर, सर एक जी क्वेश्चन ये भी होता है कि लाइक आप अब ये जो लेप्रोस्कोपी हो गई है तो पोस्ट ऑप जो वार्ड है तो आप इस पेशेंट की क्या मॉनिटरिंग करेंगे? और जैसे आपने कहा कि 1 वीक बाद मैं इसको बुलाऊंगा, तो सर जो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है उसमें हम उसकी क्या मॉनिटरिंग करें, लाइक वाइटल्स और उसमें देखो पेन बेटा, आप मैनेजमेंट और उसकी वाइटल्स, उसकी अपना ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करोगे, डोमन को देखोगे, और लास्ट में उसकी पेन को रिलीव करोगे। और आफ्टर मे बी जो आपका 2 आवर्स का टाइम है, 2 आवर्स के बाद उसका एनपीओ ऑफ करोगे, और अगर उसको एनपीओ के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो ठीक हो जाएगा। और एक हम सॉरी मुझे अभी ख्याल आया, हम लेट इंजरी के अंदर वो उसके अंदर थर्मल और इंटेस्टाइनल इंजरी भूल गए। जी सर, थर्मल इंजरी का 15 पर 1000 of bowel injuries are identified late period में होती हैं. हाँ, Thermal injuries. वो नॉर्मली 4th और 5th डे पे आती है, हम वो लेट भूल गए। सर आपने एनपीओ ब्रेक का क्या टाइम बताया सर? एनपीओ Sorry? ब्रेक का सर आपने 6 कहा कि hours. एनपीओ ब्रेक 6 आवर्स का, मैं समझी नहीं 2 नहीं, आवर्स आफ्टर मेरे ख्याल 2 to 3 आवर्स अगर 2 डायग्नोस्टिक हुई है, आवर्स सर ने 2 कहा आवर्स के बाद है। गट्स काउंट्स आ जाती हैं, पेशेंट मोबिलाइज है, पेन फ्री है, 2 आवर्स के बाद उसका आप एनपीओ ब्रेक कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ द लेकिन ये तो सर डायग्नोस्टिक में भी इसी तरह करना है या थ्योरेपेटिक में भी एनपीओ जो है वो 2 आवर्स के नहीं बाद ही नहीं, ब्रेक? थेरेप्यूटिक में नहीं होता। थेरेप्यूटिक डिपेंडिंग ऑन आपने क्या क्या किया है, उसमें एटलीस्ट आपको एटलीस्ट 8 आवर्स और अपना 12 आवर्स के बाद ही होता है एनपीओ ब्रेक, जी सर। या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करते हैं नॉर्मली। सर इसका क्या प्लान होगा फिर? फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी जब लेप्रोस्कोपी कर ले और ट्यूब्स पेटेंट है, वो 1 वीक बाद आ गई है, तो फिर हम इस केस को आगे कैसे लेकर जाएंगे? अगर उसने पहले ओवुलेशन इंजेक्शन वगैरह ली हुई है तो फिर हम उसका आईयूआई करेंगे। अगर उसने पहले ओवुलेशन इंजेक्शन नहीं ली गई तो पहले उसको 3 मंथ्स के लिए ओवुलेशन इंजेक्शन देंगे, और उसके बाद फिर हम उसकी आईयूआई सेकंड, अगर नहीं 3 मंथ्स में होता 3 to 6 मंथ्स में, फिर हम उसको आईयूआई मूव करेंगे। अगर 3 मंथ्स में उसकी आईयूआई का भी फेलियर होता है तो फिर देन वी मूव ऑन टू आईवीएफ। दैट्स वेरी यस सिंपल। सर, थैंक यू। चलो, डॉक्टर शनाज की है क्लास अभी? सर है सर। Yes सर sir, यानी अभी 3 साइकिल्स ऑफ आईयूआई ना सर? हाँ, 3 नॉर्मली साइकिल्स ऑफ 3 आईयूआई साइकिल्स, के 3 बाद साइकिल्स के बाद देन यू सिट डाउन अगेन एंड डिस्कस
और जाहिर है 3 साइकिल्स के अंदर फिर उसको रिव्यू भी करते हो कि जिसके फॉलिकल्स ठीक बने हैं, ये नहीं कोई स्पर्म काउंट में इशू तो नहीं आ गया इन दिनों में, और फिर देन उसके बाद प्रोसीड। और ये IUI के जो साइकिल्स होंगे तो सारे स्टिमुलेटेड साइकिल्स ही होंगे ना सर, नॉन सारे स्टिमुलेटेड साइकिल हो। यस, ठीक है। ठीक। चलो बेटा, अगर ये हो गया देन इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। डॉक्टर सारा, हेलो जी जी। डॉक्टर सारा, ये एक बार से थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा जो आपने वेरिस निडल और ट्रोकार की मतलब सेपरेट बताई है ना, कॉम्प्लिकेशंस काइंड ऑफ रिपीट कर दें। Okay, complications are bowel. Major injuries. The risk of major injuries 2 per 1,000. Risk of bowel injuries 0.6 per 1,000. Bladder injuries 0.3 per 1,000. Vessel injuries 0.1 per 1,000. And risk of hernia is 1 in 100. And 15 in 100 injuries of the bowel are identified in daytime duration. These are the thermal injuries.